Hello everyone. In this series, we will study determinants. We calculate determinant only for matrices. Specifically speaking, for square matrices only. Determinant of a matrix gives us a number, and that number can be a complex number or real number depending upon the entries in the matrix. Let's say there is a matrix A. Suppose this is a matrix A which has entries A, B, C, D. Okay? Now this matrix is of order 2 by 2, means it has 2 rows and 2 columns. Okay, so order of this matrix is 2 by 2, therefore this is a square matrix, hence we can calculate the determinant of this matrix. Now determinant of matrix A is represented like this. So inside this bar we write matrix and we change the bracket. ये जो bracket है इसको हम लोग change कर लेते हैं. चेंज करके वी पुट स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अंदर में एलिमेंट्स रहेगा. So this is a representation for the determinant of any matrix. ठीक है, in matrix we use these brackets, but in determinant we use these straight lines. Now this determinant of the matrix, okay, this is a determinant of the matrix A. Now this will give us a number. ठीक है, that can be a real number or a complex number. If the elements are real number, ठीक है, अगर ये जो element है अगर real number रहता है, so determinant will be a real number, and if these entries are complex number, then determinant of the matrix will be a complex number. ठीक है, so in this chapter we will study determinant of the matrix that has real entries. Real entries, that means entries as a real number. ठीक है, so determinant of the matrix will give us a real number, so this will belong to the real number, and we represent determinant of A like this. Also we can write det in bracket A. This is also a representation determinant of A, or we can write delta. Okay, these are the representation of any determinant of a matrix. Now we will see how to calculate determinant of the matrix of different order. First we will see determinant of matrix of order 1. So determinant of matrix of order 1 means matrix of order 1 by 1. That means determinant of matrix that has only one row and one column. So उसके लिए एक example ले लेते हैं. Let's say this is a matrix A and this has only one element A11. Okay, since there is one row and one column, the subscript of this element is 1 1. Now we will calculate determinant of this matrix. So determinant of A is basically determinant of A11. Okay, so in this matrix there is only one element, so determinant of this matrix will simply be A11. That means जो element determinant के अंदर में है वही उसका आंसर होगा. For example, let's take an example. A is a matrix that has element -1. Okay, now I have to find a determinant of A, that means determinant of -1. So this is basically determinant of a matrix which has only one element which is -1. ठीक है, so इसका determinant आएगा that will be directly the element. This element will be the answer. So the answer is -1. So generally students गलती करते हैं कि इसको मॉडुलस की तरह कंसिडर करते हैं. So this is not a modulus. Okay, this is determinant of the matrix that has element -1. So answer of the determinant is basically the element inside the determinant which is -1. So do not consider this as a modulus, otherwise the answer will be wrong. So determinant of matrix of order 1 will be the element inside the determinant. Okay, now we will move on to determinant of matrix of order 2. So determinant of matrix of order 2, that means we have to calculate determinant of a matrix that has 2 rows and 2 columns, in other words of order 2. So we will consider a general form of a matrix. So let's say matrix A. So matrix A has element A11, A12, A21, A22. ये कुछ elements है in general form. So A11 is the element in first row, first column, and A12 is the element in first row, second column. Therefore A21 is the element in second row, first column, and A22 is the element in second row, second column. So this is a matrix that has 2 rows and 2 columns. Okay, we have to calculate the determinant of this matrix. So determinant of the matrix A is a determinant of these elements. Okay,
So to calculate determinant of this matrix, first we have to multiply these diagonal element. Okay, so these are diagonal element and these are non-diagonal element. So first we have to multiply diagonal element. So on multiplying diagonal element I will get a11 and a22. ठीक है, माइनस अब हम लोग क्या करना है, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करना है. सो a12 इंटू a21. सो दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसका प्रोडक्ट है ये, एंड ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग आई विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आई विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो सिंपली क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. So we will take an example. So let's say there is a matrix A that has element -1, 0 and 2, 3. So determinant of A will be determinant of -1, 0, 2 and 3. So क्या करना है, अब सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. So basically -1 into 3, then minus नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, which is 0 into 2. सो सॉल्व करने पर आई विल गेट -3 -0 विच इज -3. ठीक है, सो -3 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. नाउ वी विल सी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. फॉर दैट लेट्स कंसिडर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. So this is a matrix of order 3. This is a general form of the matrix of order 3. Now we will calculate determinant of this matrix. First of all, we have to understand the sign convention. Let's write the determinant of A first. So this is a determinant of order 3. Now we will understand the sign convention. Let me copy this first. So what is the sign convention? So for first element the sign is a plus sign. So let me write this in red. So plus sign, then the next element, sign for the next element is minus, then plus, then minus, plus, minus, plus, minus, plus. So these are the sign convention. Okay, these are the sign convention for the elements. Now where does this sign come from? So इसके लिए so ये जानने के लिए we have to understand cofactors. ठीक है, so we will see those things in the topic cofactor. सो हम ब्रीफली बताया था ये साइन कहाँ से है. साइन बेसिकली कोफैक्टर का फॉर्मूला से है, एंड कोफैक्टर फॉर्मूला में ये कोएफिशिएंट है -1 पावर i प्लस j. ठीक है, इस कोएफिशिएंट से ये साइन आया, ये जो साइन है, जो भी साइन है, ठीक है, ये साइन इस कोएफिशिएंट से आया -1 पावर i प्लस j. सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट i and j are 1 and 1. Okay, so if you put that -1 power 1 plus 1, you will get -1 power 2. So square of -1 is 1. Okay, which is basically plus 1. And if you take the next element a12, so I is 1 and j is 2. If you put that in the formula 1 plus 2, and it will become -1 power 3, which is -1. So this plus and this minus is for element first and second. And then if you apply the formula in the third element, you will get again +1, therefore plus, and for the fourth element you will get -1, therefore there is a minus. Okay, so for different element you will get these sign. Okay, -1 plus 1, and from that -1 plus 1 I have taken only the sign. Okay, so these sign come from this formula. Actually this is the coefficient in the cofactor formula में हम लोग देखेंगे, ये जो है ना -1 power i plus j, ये basically एक coefficient है in the formula of cofactors, जिसका वजह से ये sign develop हुए. ठीक है, now we have to use this sign to find determinant of this matrix of order 3. अब ये sign को कैसे use करें? So for that let me show you how to use these signs to find the determinant. So determinant of the matrix of order 3 can be solved by using any row or any column. ठीक है, so in total 3 rows है and 3 columns है. ठीक है, so कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम को यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं. सो इफ यू टेक रो 1, ठीक है, सो वी हैव टू यूज द साइन ऑफ द रो 1 ओनली, बाकी साइन मेरे को यूज नहीं करना है. लेट्स सॉल्व द डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट रो. ठीक है, सो फर्स्ट रो को हम r1 से रिप्रेजेंट कर लिए.
लेट मी इरेज दिस पार्ट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। हम यहाँ पे रो वन का यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेगा। सो वी हैव टू यूज द साइन फॉर द रो वन ओनली। सो यहाँ पे जो साइन है ये रो वन है, ठीक है। इसके लिए साइन क्या है, प्लस माइनस एंड प्लस। सो ये साइन को यहाँ पे पुट करना है, प्लस माइनस एंड प्लस, बाकी साइन पुट नहीं करना है, ठीक है। यही साइन का यूज है मेरा। सो रो वन का यूज करके कैसे इसको सॉल्व करना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो वी हैव टू यूज रो वन, ठीक है। अब जब रो वन को यूज करेगा सो हर एक एलिमेंट के साथ में ये साइन को भी लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज a11 एंड a11 के लिए साइन क्या है, प्लस है। सो प्लस a11, ठीक है। देन अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो या फिर इरेज करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट एंड इरेज करने के बाद ये चार एलिमेंट बचा रहेगा। सो ये चारों एलिमेंट को डिटरमिनेंट के अंदर लेना है, डिटरमिनेंट ऑफ a22, a23, a32 एंड a33, ठीक है। So I have picked this first element with the sign plus a11. Then I have to erase this first row and first column. erase करने के बाद ये चार एलिमेंट बचा रहेगा। अब ये चारों एलिमेंट को डिटरमिनेंट के अंदर में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू पिक नेक्स्ट एलिमेंट विच इज a12। अब a12 के लिए साइन क्या है, माइनस है। सो एलिमेंट के साथ में साइन को भी पिक करना है। सो माइनस a12, ठीक है। अब क्या करना है, a12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इरेज करने के बाद ये चार एलिमेंट बचा रहेगा। तो ये चारों एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लेना है, ठीक है। a21, a23, a31 एंड a33, ठीक है। नाउ दोनों एलिमेंट हम ले लिए, फर्स्ट एलिमेंट लिया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इरेज किया, चार एलिमेंट को डिटरमिनेंट में ले लिया। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट को लिया है, ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इरेज किया, देन ये चार एलिमेंट को डिटरमिनेंट में ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट एलिमेंट विच इज a13। सो प्लस a13, प्लस a13, ठीक है। a13 का रो कॉलम इरेज करना है अब, ठीक है। a13 का रो कॉलम इरेज करना है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, ठीक है। a13 इज इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इरेज करने के बाद ये चार एलिमेंट बचा रहेगा, उसको लेना है डिटरमिनेंट के अंदर में। a21, a22, a31 एंड a32, ठीक है। सो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ a। अब इन एक्चुअल नाउ इन द क्वेश्चंस देयर विल बी नंबर्स, ठीक है। इसका जगह क्या होगा, नंबर्स होगा। सो हियर नंबर्स विल बी देयर, हर जगह नंबर ही होगा। तो बेसिकली ये सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या बेसिकली, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है एंड ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। तो इसको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को प्रोडक्ट करना है, माइनस करना है, डायगोनल एलिमेंट को प्रोडक्ट करना है, उसको सॉल्व करके एक नंबर लेके आना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो सॉल्व करके जो भी नंबर रहेगा उसको सामने जो नंबर है उसके मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल लेना है, ठीक है। सो दिस इज बाय यूजिंग रो वन। वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट बाय यूजिंग एनी रो एनी कॉलम, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर any row or any column. So let me use another row or column to show how to apply the formula for determinant, ठीक है। So let me use the column 2, ठीक है। एक रो ले लिया, अब एक कॉलम लेके हम सॉल्व कर दिखाते हैं। So now we'll solve this determinant using column 2. So as I said, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम यूज करने से आंसर सेम आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। So first of all we have to apply the sign of the column 2. कॉलम 2 का साइन था माइनस प्लस एंड माइनस, ये साइन था, ठीक है। सो जिस रो या फिर जिस कॉलम का यूज करके डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, उसी रो या कॉलम का साइन को अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज a12 एंड साइन इज माइनस, सो माइनस a12। देन a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, सो फर्स्ट और सेकंड कॉलम इरेज करने के बाद ये चार एलिमेंट बचा रहेगा एंड ये चार एलिमेंट को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो a21, a23, a31 एंड a33, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है कॉलम का, a22 एंड साइन इज प्लस, सो प्लस a22 एंड इसका रो कॉलम इरेज करना है। ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, इरेज करने पर a11, a13, a31 एंड a33 रहेगा। सो उसको लेना है a11, a13,
A31 एंड A33, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कॉलम का कौन सा है, A32 एंड उसके लिए साइन है माइनस, सो माइनस A32। इसका रो कॉलम इरेज करने के बाद ये है रो एंड ये है कॉलम, इरेज करने के बाद कौन सा एलिमेंट बचा रहेगा, ये 4 एलिमेंट बचा रहेगा, इसको लेना है डिटरमिनेंट के अंदर में। सो एलिमेंट्स आर A11, A21, A13 एंड A23, ठीक है। एंड फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आई विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ A। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल एंड वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द डिटरमिनेंट, ठीक है। नाउ ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो टू सॉल्व डिटरमिनेंट वी कैन यूज एनी रो एनी कॉलम, ठीक है। लेट्स यूज फर्स्ट रो। सो व्हाट वाज द साइन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, इट वाज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब क्या करना है, साइन के साथ एलिमेंट को लेना है। सो साइन इज प्लस देन एलिमेंट इज 2 एंड ये फर्स्ट कॉलम में है, इसका रो कॉलम इरेज करना है, ये 4 एलिमेंट को डिटरमिनेंट में लिखना है। सो 3 माइनस 1 1 एंड 1। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -1, सो -1। अब इसका रो कॉलम इरेज करना है, सो इरेज कर दिया, बचा एलिमेंट क्या है, ये 4 बचा रहेगा। इसको इरेज करने के बाद सो इसको लिखना है डिटरमिनेंट के अंदर में, ठीक है। सो 4 - 1 एंड 2 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, +0। अब इसका रो कॉलम इरेज करना है, इरेज करने के बाद ये 4 बचेगा, इसको पुट करना है डिटरमिनेंट के अंदर में, विच इज 4 3 2 एंड 1। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व किया अभी रो 1 का यूज करके, सो बाई रो 1, ठीक है, ये बाई रो 1। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2। इसको सॉल्व कैसे करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -1 डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है -2 देन +0, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, सो 4 - 6, सो 2। ये क्या है, 3 + 1 है बेसिकली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 इज 6 एंड ये 0 × 2 इज 0, सो +0। अब इसको सॉल्व करना है, सो ये है 8 - 6 इज 2, सो फाइनल आंसर इज 2, ठीक है। सो बाय रो 1 आई गॉट द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। नाउ आई विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कॉलम, जिससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो एग्जाम में एक ही रो या फिर एक ही कॉलम यूज करके सॉल्व करना है। सो एग्जाम में कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम यूज करके सॉल्व करना है, आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे हम शो करने के लिए बस हम एक कॉलम का यूज करके भी सॉल्व करके दिखाएगा। लेट्स पिक कॉलम 1, ठीक है, या फिर लेट्स पिक कॉलम 3। सो आई कैन यूज कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, आंसर सेम आएगा। लेट्स यूज कॉलम 1 ओनली, ठीक। सो बाई C1, ठीक है, बाई C1 डिटरमिनेंट ऑफ A। अब C1 का साइन को यूज करना है, सो लेट मी इरेज दिस एंड लेट मी पुट साइन फॉर C1 मतलब कॉलम 1 का साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे साइन पूरा हम लिख के दिए, तो उसको देख के साइन पुट कर लेना है। सो साइन क्या, प्लस माइनस प्लस, सो फर्स्ट क्या है 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के 2 एंड +2, रो कॉलम इरेज करना है, इसको डिटरमिनेंट में लिखना है। सो +2 डिटरमिनेंट के अंदर आएगा 3 - 1 1 1, 3 - 1 1 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -4 और साइन के माइनस, ठीक है, -4। सो यहाँ पे आएगा -4 एंड डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा, सो ये है -4, रो कॉलम इरेज करने के बाद क्या बचेगा, 1 0 1 1। सो 1 0 1 1 को पुट करना है, 1 0 1 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 +2, ठीक है, +2 रो कॉलम इरेज करने के बाद क्या है, 1 0 3 - 1 +2 1 0 3 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है बेसिकली। सो 2, इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 3 + 1 -4 1 -0। नेक्स्ट क्या है 2, इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, -1 -0, ठीक है। नाउ ये है 4 × 2 8,
ये क्या है, 1 into 4 4 and finally 2 minus 1 is minus 2. So ये basically 8 minus 6 is 2. So कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज करने पर आंसर वही आएगा. So यही चीज हम यहाँ पे शो किया है. ठीक है. So this is how you solve a determinant of order 3. So हम basically determinant of order 1 and determinant of order 2 and determinant of order 3 तीनों एक्सप्लेन करके दिए and तीनों के लिए हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिए. So this is how you can solve determinant of a different order. So 12th में basically order 3 तक ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा. ठीक है. So thanks for watching this video. In the next video we will solve questions on these determinant of different orders. ठीक है. So this is for the video. Subscribe and stay tuned for more videos. Thank you.